আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ক্রিয়া। এই ক্রিয়াটি এমন একটা টপিক যেটা সমস্ত পরীক্ষাতে আসে, কিন্তু এটা বিশেষ করে এসএসসি জিডির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু এসএসসি জিডির পরীক্ষা খুবই সামনে, তাই আমি ভাবলাম যে ক্রিয়া এই বিষয়টি যদি খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে কুইক রিভিশন আকারে সমস্তটুকু একবার রিভিশন করা যায়, তাহলে তোমাদের খুবই উপকৃত হবে। এবং আমি মনে করি যে আমি যেটা এখন তোমাদেরকে পড়াবো সেটা তোমরা যদি ধ্যানপূর্বক পড়ো এবং এটাকে যদি বোঝো, যারা একটু হলেও ক্রিয়া সম্পর্কে জানো তাদের তো সমস্ত কিছুটাই ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এবং আমি যেটা পড়াবো সেটা বিশেষ করে বাংলা ভাষী রাজ্য, যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গল, আসাম, এই সমস্ত জায়গার মানুষগুলো এগুলোকে ভালো বুঝতে পারবে, কারণ আমিও একজন বাংলাভাষী মানুষ। হ্যাঁ, সেহেতু বাংলা ভাষায় তোমাদেরকে খুবই সহজ সরলভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে। তাই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই ভিডিওটা তোমরা দেখো। আশা করি সিঙ্গেল কোশ্চেনও আটকাবে না এবং এত সুন্দরভাবে বোঝাবো। তাহলে ক্রিয়া এর যে পরিভাষা, যেটাকে ইংরেজিতে ডেফিনেশন বলে, जो विकारी शब्द किसी कार्यों को होने या करने का बोध कराती है वह क्रिया शब्द कहलाता है। जैसे कि पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना, चलना, दौड़ना, रोना, गाना ইত্যাদি। यानी कि আমরা যে বিষয়টি জানলাম যে প্রতিটা কিন্তু শব্দের শেষে কিন্তু না প্রত্যয় আছে। অতএব এখান থেকে আমরা জানতে পারি যে কোনো ধাতুর সঙ্গে যদি না প্রত্যয় যোগ হয় তাহলে কিন্তু ক্রিয়া হয়, যেটা আমরা পরে পড়ব। क्रिया का मूल रूप होता है धातु जिससे क्रिया का निर्माण होती है। जैसे कि ধাতু প্লাস প্রত্যয় যোগ করলে আমরা কিন্তু ক্রিয়া পাই, যেমন পড় যুক্ত না, पढ़ना। जैसे कि धातु হচ্ছে पढ़ এবং না হচ্ছে প্রত্যয়, इसलिए क्रिया पढ़ना। जैसे कि लिखना, लिख युक्त ना लिखना, खा युक्त ना खाना, पी युक्त ना पीना, चल युक्त ना चलना, दौड़ उड़ युक्त ना उड़ना, जा युक्त ना जाना, आ युक्त ना आना। यानी कि धातु में ना प्रत्यय लगाकर क्रिया बनती है। আমি যেটা তোমাদেরকে আগেই বললাম, क्रिया का निर्माण किसी किससे होती है, तो धातु से होती है। ठीक है। जैसे कि क्रिया दो प्रकार होती है, एक होता है कर्म के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। আমরা এখন কর্মকে আধার पर যে দুই প্রকার হয় সেটা আমরা জানবো এবং অর্থকে আধার पर তারপরে জানবো। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार होती है, जैसे कि एक होता है अकर्मक क्रिया और दो नंबर होता है सकर्मक क्रिया। ये अकर्मक क्रिया में कर्ता प्लस क्रिया आता है, लेकिन सकर्मक क्रिया में कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया आता है, तीन आता है। और একটা কথা সেটা হচ্ছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে इसमें क्या का जवाब नहीं मिलता, लेकिन सकर्मक क्रिया में क्या का जवाब मिलता है। ये जो क्या का जवाब मिलता है सकर्मक क्रिया में और क्या का जवाब नहीं मिलता है अकर्मक क्रिया में, এই দুটো থেকেই বেশিরভাগ আমরা কিন্তু কোশ্চেন লক্ষ্য করব। ঠিক আছে। এবং এই দুটোই হচ্ছে এই ক্রিয়ার হচ্ছে মূল বিষয়, এখান থেকে কিন্তু আমাদের কোশ্চেন আসে এবং এটা হচ্ছে আমাদের মূল বিষয়। তারপরে আমরা চলে আসব যে अकर्मक क्रिया কাকে বলে। जो क्रिया बिना कर्म की होती है तथा क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ती है उसे अकर्मक क्रिया कहलाता है। এর যদি एग्जांपल আমরা পড়ি তাহলে এটা আমাদের কাছে খুবই স্বচ্ছ হয়ে দাঁড়াবে। যেমন बच्चे रोता है, बच्चे মানে क्या का जवाब नहीं मिलता है। আমি তোমাদেরকে এটা আগে বললাম, এটা হচ্ছে যে बच्चे रोता है, रोता है এটা হচ্ছে তোমার क्रिया, लेकिन बच्चा होচ্ছে कर्ता। इसको क्या का जवाब मिलता नहीं मिलता है कि जैसे बच्चे क्या रोता है, कोई जवाब नहीं मिलता आ रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है, जिससे क्या होने का पता नहीं चलता। और
कर्ता कार्यों को करने वाला होता है, ठीक है सर। और जो कर्म होती है वह कर्म कहलाता है, उसे क्रिया से पहले होती है, ठीक है। আর এক্সাম্পল আরো কিছু রয়েছে, যেমন प्रधानमंत्री जी सो रहा है, प्रधानमंत्री जी क्या रहा है, कोई जवाब नहीं मिलता, इसीलिए इसको हम अकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री करता है, सो रहा है एक क्रिया है, लेकिन रहे है उसको सहायक क्रिया है। ये आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान रखते हुए चलेंगे कि क्रिया के बाद में सहायक क्रिया आती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे मोहन चलता है, मोहन क्या चलता है ये तो हमको पता नहीं, इसलिए ये আকর্মক ক্রিয়া है। আমাদেরকে কোশ্চেনে সরাসরি বলে দেবে যে আকর্মক ক্রিয়া কোনটা। এবার অপশন থেকে আমরা কিন্তু বুঝতে পারবো क्या का जवाब नहीं मिलता है। আর এর পরবর্তীকালে যখন আমরা क्या का जवाब मिलता है তখন এটা আমাদের কাছে স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার হয়ে যাবে। जैसे कि पक्षी आकाश में उड़ती है, क्या उड़ती है जवाब नहीं मिलता है, लेकिन क्रिया हमेशा अंत में आती है और कर्ता हमेशा प्रथम में होती है, इसको तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि राम दौड़ती है, राम क्या दौड़ती है, इसको क्या का जवाब नहीं मिलता, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया होता है। আর এখানে আমি একটা সকারাত্মক ক্রিয়ার একটা উদাহরণ লিখে রেখেছি, এখানে এটা দেখলে তোমরা ভালো এটার সঙ্গে রিলেট করতে পারবে। जैसे कि सीता पत्र लिखता है, सीता क्या लिखता है, पत्र लिखता है, जैसे कि क्या का जवाब मिल गया, इसलिए इसको हम सकर्मक क्रिया कहलाता है। और कौन लिखता है, जैसे कि कौन लिखता है, रीता लिखता है, इसे कर्ता का उत्तर पाया जाता है। অতএব আমরা এখান থেকে একটা জিনিসই জানতে পারলাম যে আকর্মক ক্রিয়াতে कौन का जवाब मिलता है लेकिन क्या का जवाब नहीं मिलता। এখান থেকে কিন্তু আমাদের এটা সলিউশন হয়ে গেল যে আকর্মক ক্রিয়াতে क्या का जवाब नहीं मिलता, लेकिन सकर्मक क्रियाते क्या का जवाब मिलता है और कौन का जवाब भी मिलता है, ঠিক আছে। এরপরে আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে তোমার सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया इसका परिभाषा जो होता है, जो क्रिया कर्म के साथ आती है और क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे कि क्या का जवाब मिलता है और कौन का जवाब भी मिलता है, ये तुमको हम बोली है। जैसे कि राम आम खाता है, राम क्या खाता है, आम खाता है, कौन खाता है, राम खाता है। প্রত্যেকটি उदाहरण क्षेत्र तुम्हें क्या का प्रश्न का उत्तर मिलेगा। जैसे कि शीला पत्र लिखती है, क्या लिखती है, पत्र लिखते हैं, कौन लिखती है, शीला लिखती है। तोता अनार खाती है, तोता क्या खाती है, अनार खाती है। कौन खाती है, तोते खाती है। अध्यापक हिंदी पढ़ती है, क्या पढ़ती है, हिंदी पढ़ती है। कौन पढ़ती है, अध्यापक पढ़ती है। कभी कविता लिखती है। और जैसे कि सकर्मक क्रिया को दो भेद होती है, एकर्मक सकर्मक क्रिया। जैसे कि जो सकर्मक क्रिया का दो भेद होती है, एक होता है एकर्मक सकर्मक क्रिया और 2 नंबर होता है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। एकर्मक सकर्मक क्रिया में जिस वाक्य में एक कर्म होता है उसे एकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे कि राम फल खाता है, राम क्या खाता है, फल खाता है। कौन खाता है, राम खाता है। और क्या का जवाब मिलता है, एक कर्म यहाँ आती है, लेकिन द्विकर्मक सकर्मक क्रिया में 2 कर्म आती है। जैसे कि जिस वाक्य में इसकी परिभाषा बोले तो जिस वाक्य में 2 कर्म होती है उसे द्विकर्मक सकर्मक कहलाता है। जैसे कि माँ बच्चे को दूध पिलाती है, और माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इससे तो दो कर्म आती है। जैसे कि एक होता है मुख्य कर्म और एक होता है गौण कर्म। मुख्य कर्म हमेशा क्रिया का साथ आता है और गौण कर्म हमेशा कर्ता का साथ आता है। और मुख्य क्रिया हमेशा निर्जीव होता है और गौण कर्म हमेशा सजीव होता है, माने जीवित होता है, और ये निर्जीव होता है। और एक बात हमेशा याद रखना, क्रिया का माने क्या से प्रश्न करने से हमको मुख्य क्रिया मिलता है, और कौन से माने किसको से प्रश्न करने से
हमको गौण कर्म मिलता है, और कौन से प्रश्नों करने से हमको कर्ता मिलते हैं। जैसे कि बच्चे क्या खाती है, दूध खाती है, इसीलिए मुख्य कर्म होता हो गया। और बच्चे किस किसको माने किसको पिलाती है, बच्चे को पिलाती है, एक गौण कर्म मिल गया। कौन पिलाती है, माँ पिलाती है, कर्ता मिल गया। और अंत में तो पिलाती है तो क्रियाएं होता है। इसको नोट आकार में हमने लिख लिया, जैसे कि दिकर्म में 3 जवाब मिलती है, जैसे कि क्या से मुख्य क्रिया मुख्य कर्म, किसको से गौण कर्म, और कौन से कर्ता मिलती है। ठीक है, আশা করি তোমাদের এই যে সকর্মক ক্রিয়া আর আকর্মক ক্রিয়াটা সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছো। এটা এখানে আমি আরেকটা উদাহরণ নিয়েছি। হ্যাঁ, এখানে তোমরা এটাও আরেকবার রিভাইজ করে দিচ্ছি, তোমরা দেখে नाओ। अध्यापक छात्री को हिंदी पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है, हिंदी पढ़ाती है। ये तो निर्जीव हो गया। किसको पढ़ाती है, छात्री को पढ़ाती है, एक गौण कर्म हो गया। और कौन पढ़ाती है, अध्यापक पढ़ाती है, एक कर्ता हो गया। ये सजीव, ये निर्जीव, और ये को, इसको हम बाद में जानेंगे, एक कारक होता है। ठीक है, और फिर हमने बोला एक होता है कर्म के आधार पर 2 भेद, और एक है अर्थ के आधार पर। या अर्थ के आधार पर 4 भेद मूल रूप से होता है, लेकिन हम जानेंगे 2 एकांत बहुत है। ठीक है, जैसे कि संयुक्त क्रिया, एक होता है संयुक्त क्रिया, जिस क्रिया में जिस वाक्य में 2 क्रिया एक साथ आती है, वह वाक्य संयुक्त क्रिया वाक्य कहलाता है। जैसे कि 2 क्रिया, जैसे कि मोहन हम हमारे घर आता जाता है। जैसे कि आता और जाता दोनों क्रिया है, आता जाता दोनों क्रिया। जैसे कि 2 नंबर उदाहरण के रूप में अनिकेत ने खाना खा लिया। पहले तो खाना खाया, फिर लिया खाना को। शीला और मोहन साथ पढ़ते लिखते हैं। जैसे कि पढ़ना एक क्रिया होता है, लिखना एक क्रिया होता है। इसको हम संयुक्त क्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे कि सहायक क्रिया हमने आगे तुमको बोला। सहायक क्रिया जैसे कि जो क्रिया मुख्य क्रिया को पूर्ण बनाने में सहायक तो होती है, उसे सहायक क्रिया कहलाता है। जैसे कि हमने बोली राम पढ़ा, कोई अर्थ नहीं आ रहा है, इसीलिए हम जहाँ राम पढ़ रहा है बोला, इसलिए इसको सहायक क्रिया, इसको पूर्ण रूप देता है। माने मूल क्रिया के যখন पूर्ण रूप দেয় তখন আমরা सहायक क्रिया बोली। जैसे कि रहा है, रही है, रही है, এরকম টাইপের। যেমন মোহন ने मोना मोना से डैश, मोना से মানে कोई उत्तर नहीं मिलता है। যখন আমরা বলবো যে मोना से मोना सो रही है, वर्षा हो रही है, पिताजी चाय पी रही है, তখনই এটার কিন্তু অর্থ পূর্ণ বোঝায়। তাই এটিকে আমরা বলবো সহায়ক ক্রিয়া। ঠিক আছে, তারপরে আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে পূর্বকালিক ক্রিয়া। जैसे कि पूर्वकालिक क्रिया সম্পর্কে যখন আমরা পড়বো এটা সম্পর্কে, তখন আমরা বলবো যে এর পরিভাষা হলো जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल মানে उसी समय মানে সেই সময় दूसरी क्रिया शुरू करता है, वहाँ पर মানে একটা ক্রিয়া শেষ করলো এবং সেই সময় সেখানে আরেকটা ক্রিয়া শুরু করলো, তখন पूर्व যে ক্রিয়াটা হয়ে গেল সেটাকে পূর্বকালিক ক্রিয়া कहलाता है। जैसे कि আমি হিন্দিতে এর পরিভাষাটা আরেকবার বলে দিচ্ছি। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके तत्काल उसी समय दूसरी क्रिया शुरू करता है, वह पर पहली वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम जानेंगे, रोहित खाना खाकर पढ़ने लगा। जैसे कि खाना तो पहले रोहित खा लिया, फिर पढ़ने लगा, साथ साथ पढ़ने लगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि शामीम चाय पीकर स्कूल गई, बच्चे दूध पीकर सो गई। মানে প্রথম ক্রিয়া হওয়ার পরে পরেই কিন্তু দ্বিতীয় ক্রিয়া শুরু হয়ে গেল, তখন এটাকে আমরা বলবো পূর্বকালিক ক্রিয়া। এটাকে তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে, কারণ পূর্বকালিক ক্রিয়া আর संयुक्त क्रिया दोनों কিন্তু পরীক্ষায় আসে। ঠিক আছে,
जैसे कि प्रेरणार्थक क्रिया, এটাও কিন্তু পরীক্ষাতে আসে, আমরা দেখেছি প্রিভিয়াস ইয়ারে কোশ্চেন যখন আমরা তুলে করেছি তখন আমরা কিন্তু প্রেরণার্থক ক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পেরেছি এবং এই বিষয়টা কিন্তু পরীক্ষা আসে, এটাও তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে। जैसे कि এর পরিভাষা যদি বলি আমি, जब वाक्यों का कर्ता कोई कार्य स्वयं यानी कि खुद ना करके दूसरे व्यक्ति को करने का प्रेरणा या सलाह देता है। মানে বলতে চাইছে যে বাংলা ভাষায় যদি আমি এটাকে বলি তাহলে বলছে যখন কোনো কর্তা মানে কোনো ব্যক্তি কোনো একটা নির্দিষ্ট কাজ সে না করে যখন তার সামনে যে থাকে তাকে সেটা করার আহ, করতে বলে এবং নাহলে সেটাকে করার সালাহ দেয়, মানে আদেশ বা অনুরোধ বা এরকম টাইপের কিছু করে, হ্যাঁ, তখন সেটাকে আমরা বলবো প্রেরণার্থক ক্রিয়া। जैसे कि প্রেরণার্থক ক্রিয়াকে চেনার কিছু উপায় রয়েছে, সেখান থেকে আমরা কিন্তু প্রেরণার্থক ক্রিয়া পেয়ে যাব। যেমন प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में आना प्रत्यय आती है और द्वितीय प्रेरणार्थक में बाना प्रत्यय आती है। जैसे कि पढ़ना, लिखना, पढ़वाना, लिखवाना মানে অন্যজনকে করিয়ে নেওয়া হচ্ছে, নিজে না করে অন্যজনকে করিয়ে নেওয়া হচ্ছে, बाना मतलब होता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लोग जानेंगे, शीला मोहन से पत्र लिखवाती है, মানে শিলা লিখে না, মোহন সে পত্রটা লিখবাতি হে মানে লিখে নেয় বাংলা ভাষায় যেটাকে বলতে গেলে, ঠিক আছে। इसको हम बाना प्रत्यय बोलेंगे। অতএব আমরা একটা কথাই জানবো, যখন আমাদেরকে ক্রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করবে এবং যদি আমাদেরকে বলে যে প্রেরণার্থক ক্রিয়া তোমরা খোঁজো, তখন বিষয়টা হলো যে আমাদেরকে প্রশ্নের মধ্যে দেখতে হবে বানা ইয়া আনা প্রত্যয়, মানে প্রত্যয় মানে বাদ মে লাগনে वाली ক্রিয়া, ঠিক আছে, বাদ মে লাগনে वाली শব্দ। এই বানা শব্দ বা আনা শব্দ দেখলেই সেটাকে আমরা বলবো প্রেরণার্থক ক্রিয়া। একটা ট্রিক হিসাবে তোমরা ধরে রাখো, এটা পরীক্ষাতে হয়, বিশেষ করে বানা আর আনা প্রত্যয়ের মধ্যে কিন্তু কোশ্চিন তোমার চলে আসে, ঠিক আছে। এরপর যে বিষয়টা নিয়ে আমরা যে বিষয়টা সম্পর্কে আমরা জানবো সেটা হচ্ছে নাম ধাতু ক্রিয়া। এই নাম ধাতু ক্রিয়ার এর যদি পরিভাষা আমরা জানি তাহলে जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है तथा उनके अंत में याना या आना प्रत्यय आती है वह नाम धातु क्रिया होती है, ঠিক আছে। যেমন হাত হাতিয়ানা, लत लतियाना, घर घर घना घराना, बत बतियाना, अपना अपनाना, रंग रंगनाना, रंगाना, गली गलियाना इत्यादि, ঠিক আছে। সংজ্ঞা, প্রথমে একটা সংজ্ঞা মানে সংজ্ঞা প্লাস आना मिलकर क्या बनती है, नाम धातु क्रिया बनती है, ठीक है। और सजाती क्रिया, আমি প্রথমেই তোমাদেরকে বলছি মূল রূপ সে কিন্তু চার রূপ হয় এবং এগুলো আমি পড়ছি কারণ এগুলো তোমাকে বলছি, এগুলো কিন্তু পরীক্ষা আসে এবং এগুলো জেনে রাখা আমাদের প্রয়োজন, সেহেতু তোমাদেরকে আমি একটু টাচ দিয়ে রাখছি, এগুলো কিন্তু জানা প্রয়োজন রয়েছে। जैसे कि सजाती क्रिया, जो क्रिया समान धातु से बनती है वह क्रिया सजाती क्रिया कहलाता है। जैसे कि पढ़ पढ़ना पढ़ाई, चढ़ चढ़ना चढ़ाई, लड़ लड़ना लड़ाई, মানে সমান ধাতু রূপে আতি হে, ঠিক আছে। যেমন পড়নাও যা পড়ায়ও তাই, একই রকম টান এবং একই রকম শব্দ, শুধুমাত্র কিছু অক্ষরের ডিফারেন্টের কারণে এটাকে আমরা কি বলবো, সজাতি ক্রিয়া, ঠিক আছে। তারপরে আসে আমাদের अनुकरात्मक क्रिया, जैसे कि प्राकृतिक ध्वनि को निकालना। जैसे कि प्राकृतिक ध्वनि बहुत रकम बहुत रूप में होती है আর ওটাকে যখন আমরা মুখে বলি এবং সেটা সেরকম তো পারি না কিন্তু সেরকম আমরা বানানোর চেষ্টা করি, এটা কি বলছে অনুকারাত্মক ক্রিয়া। जैसे कि हिनहिनाना, हिनहिनाना घोड़ा घोड़ा जैसे बोल মানে ডাকতে है, उस रूप से तो हम नहीं बोल पाए लेकिन আমাদের মানে মুখের ভাষায় যেটাকে বলতে পারি হিনহিনানা, ঘোড়া কা ডাক, মিমিয়ানা ছাগলের ডাক, গুনগুনানা মানে গান কেউ যদি করে তখন গুনগুন করে সেটাকে আমরা বলি গুনগুনানা, ঠিক আছে। চেঁচাহানা মানে চিড়িয়া, ভিনভিনানা মানে মাখি, তারপরে খটখটানা যেমন খটখট করে কেউ দরজায় ঠক্কর দিল তখন আমরা কি বলি, কেউ खटखटा रहा है, ठीक है, ऐसे इसको हम अनुकरात्मक क्रिया कहलाता है। और असामान्य क्रिया, सामान्य रूप से होने वाली क्रिया, जैसे कि मोहन आया, बच्चा पढ़ा, सीता गया, মানে খুবই ছোট শব্দের মধ্যে এটাকে আমরা বলি, এটা কি বলছি আমরা সামান্য ক্রিয়া। যদি তোমাদের ক্লাসটা ভালো লেগে থাকে
তাহলে একবার জানাবে কমেন্টে। এবং আমি আজকেই ফার্স্ট টাইম আমি ক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করলাম। তোমরা বলবে যে তোমাদের কোন টপিক নিয়ে আলোচনা করতে হবে, সেই টপিক আমি খুব সহজ ভাষায় কুইক রিভিশন আকারে তোমাদেরকে বলে দিব। এবং যারা নতুন তাদের তো একবার মানে এই বিষয়টা সম্পর্কে একটু হলেও ধারণা এসেছে, এবং যাদের একবার হলেও এই বিষয়টা পড়েছো তাদের তো একবার রিভিশন হয়ে গেল, খুব ভালো হবে। তবে আমি বলবো যে এর বাইরে একটা কোশ্চেনও আসবে না, ঠিক আছে? আজকের আজকের এই ক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনাটা এই পর্যন্ত। যদি ভালো লাগে তাহলে তোমরা কমেন্টে একবার জানাবে।